क्या आप भी एक ऐसे रिश्ते में, एक ऐसे शादी में हैं जहाँ पे ज़िम्मेदारियाँ हैं, शादी है, लेकिन कोई जज़्बात जुड़े नहीं हैं, जहाँ पे जिस्म तो एक दूसरे के साथ फिज़िकली एक्टिव है, सेक्सुअली एक्टिव है, लेकिन रूह को रूह टच हुई है? बिल्कुल भी नहीं। आज का वीडियो भी एक ऐसे शादी का है विच इज़ मैरिज ऑफ ऑलमोस्ट 10 ईयर्स। 10 ईयर्स स्टेइंग अंडर वन रूफ, येट हर पल अधूरापन है। एंड आई एम डॉक्टर सबिया, यू आर वॉचिंग सेक्स कोचिंग विद डॉक्टर सबिया, मेकिंग लव सिंपल। इस चैनल का पर्पस ही वो है जहाँ पे हम खुल के अपने इमोशंस को जाहिर करें, इजहार करें, सप्रेस ना करें, एक्सप्रेस करें, और ऐसी स्पेस हो जहाँ पे कोई किसी को जज ना करे। आई रिसीव मेनी मेल्स, आई चूज़ फ्यू एंड देन आई शेयर माई पर्सपेक्टिव. If you agree with it, you consume it. If you don't agree with it, absolutely have freedom not to consume it. बट ग्रेसफुली हम एक ऐसी सेफ कम्युनिटी क्रिएट करते हैं जहाँ पे उन जज्बातों को हम एटलीस्ट जाहिर तो करें, किसी के सामने जाहिर करें. एंड दैट इज़ द कोर पर्पस ऑफ दिस चैनल. To know what is the question, to know what are my perspective, do watch the video till the end, and also don't forget to subscribe this channel. Dear Dr. Sabiha, I am in my early 30s, married woman with a daughter. I married very early when I was in early 20s, and my husband used to live separate for first 2 years due to job location. He used to visit on weekend and we would get close. I was very unaware of sex. We used to kiss and then intercourse. Everything was done in 5 to 8 minutes. After 2 years, we started staying together. I got conceived, and after conceiving, he stopped touching me. Almost there was a gap of 1.5 year. When I asked him, he used to give me some illogical answers. There was lost in emotional connection as well. Just doing the responsibilities as a wife after insisting sex used to happen sometimes in 3 months, 6 months. He had erection problem too. This continued for many years. I never had an orgasm. I got to know many wrong things about him. I decided to separate, but again, thinking of my child, I came back, but still there is no emotional and physical connection. He has stopped the wrong things. He's helping me in the household work, but again, I could not experience the physical and emotional connect. He's not able to kiss me, foreplay. He directly penetrates. He leaves me unsatisfied. I don't know how to sort this. I have my own desires. I try to say him, I try to teach him, but he seems not interested. Much so he does it in a I try to teach him, but he seems not interested much. So he does in a very casual way. He has no passion. I don't know how long I'm going to survive in this relationship. I need your advice. I have suffered a lot in this relationship. It feels like I am staying with a non-living thing. Also, I'm a huge fan of you. The way you speak confidently on this topic is very powerful. Lots of blessing for you. If I go through this mail again and again and again, honestly speaking, there are so many points on which we can speak elaboratively. But हाँ, एक वक्त का तकाजा रख के ना हम कुछ मेन पॉइंट्स, because I deal with, I'm a sex coach and I'm a relationship coach, and I always believe sex is an emotion first and then an act. अगर आप पूरे मेल में देखोगे तो the act तब भी हो रहा था, अब भी हो रहा है, बट इसमें इमोशंस ही मिसिंग है. क्योंकि सेक्स एज एन इमोशन को एक्सप्रेस कैसे किया जाता है, फीमेल्स कैसे एक्सप्रेस करते हैं, मेल्स को समझ आता है कि नहीं आता है, देयर आर मेनी पर्सपेक्टिव्स. सो वी विल टेक फ्यू पॉइंटर्स. वी जस्ट कांट गो डीप डाउन मच इन वन वीडियो. इन शॉर्ट अगर हम देखेंगे तो ये मैरिज ऐसी मैरिज है जहाँ पे सेक्स को कभी इम्पोर्टेंस दिया ही नहीं गया है. यहाँ पे शादी को इम्पोर्टेंस दिया गया है. इफ़ यू सी फर्स्ट फ्यू ईयर्स दे वर नॉट स्टेइंग टुगेदर. अर्ली 20s में मैरिज हुआ है, लिखा है. वी यूज टू लिव सेपरेटली फॉर 1 to 2 years. तो जब एक कपल डिसाइड करता है सेपरेट रहने का, ये एज्यूम किया जाता है ना कि फिज़िकल नीड नहीं पूरी होने से क्या होता है ना, कुछ नहीं बिगड़ता है, दुनिया थोड़ी ना रुकती है. बट रुकती है दुनिया. दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल. क्योंकि उन 2 साल के सेपरेशन में आप सिर्फ वीकेंड पे आ रहे हो, आप इंटीमेट हो रहे हो. जहाँ लड़की अर्ली 20s में है उसको तो पता भी नहीं होएगा कि व्हाट इज़ ऑर्गेजम, व्हाट इज़ क्लाइमैक्स. कि हाँ, फीमेल्स के भी प्लेजर पॉइंट्स होते हैं, फीमेल्स का भी क्लाइमैक्स, इजैकुलेशन, फाउंटेन की जैसे स्क्वर्टिंग इजैकुलेशंस होते हैं. ऑर्गेजम्स के कितने स्टाइल्स ऑफ ऑर्गेजम रहते हैं. सेक्स इज़ नॉट ओनली P/V, X इज इक्वल टू P/V फॉर्मूला पे सेक्स नहीं चलता है. शी हैज़ रिटन कि वी यूज्ड टू किस, इंटरकोर्स, एवरीथिंग डन इन 5 to 8 minutes. अब ये फाउंडेशन पे शादी स्टार्ट होती है.
उसके बाद कंसेप्शन, एंड कंसेप्शन में तो हमारी सोसाइटी में ऐसा है ना, 9 महीने प्रेगनेंसी को बीमारी समझा जाता है। 9 महीने प्रेगनेंसी में किसने कहा है कि सेक्स नहीं कर सकते, एंड आफ्टर दैट 1 ईयर ऑफ फीडिंग एंड रेजिंग द बेबी, अगेन हम कब बच्चे को प्रायोरिटी देने लग जाते हैं पता नहीं चलता है। हियर शी हैज़ मेंशन ना, आई गॉट कंसीडर आफ्टर कंसीविंग ही स्टॉप टचिंग मी, क्योंकि अभी भी हम उस सोसाइटी में है जहाँ सेक्स मतलब रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन का तो गोल अचीव हो गया, तो क्या ही हम सेक्स करेंगे। फिर इनका देखो 1.5 साल का गैप है, एंड पूछो तो यस इलॉजिकल आंसर्स, लॉजिक इलॉजिकल, हमको पता ही कहाँ है कि सेक्स, हम इस बिलीव पे चलते ही कहा है ना कि सेक्स इज़ द मोस्ट प्लेजरेबल एंड एक्शनेबल लैंग्वेज ऑफ लव। हम कॉमनली इस बिलीव पे चलते हैं क्या, तो वी डोंट इवन टॉक अबाउट इट, वी जस्ट डू इट। एंड लॉस्ट इन इमोशनल कनेक्शन लिखा है, जस्ट डूइंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ वाइफ आफ्टर इंसिस्टिंग सेक्स, इट यूज टू हैपन 3 months 6 months में इरेक्शन प्रॉब्लम है। सबसे बुरी बात क्या है पता है, सेक्स मांगना पड़े। when you beg for sex with your legal partner, इससे ज़्यादा पेनफुल कुछ नहीं होता है। एंड या इरेक्शन प्रॉब्लम तो मेल्स में अगर है तो वो तो इतना मर्दानगी पे लिया जाता है कि वंडर इत्तू सा ऑर्गन कब आपकी पूरी आइडेंटिटी का वजूद बन जाता है। एंड वर्स्ट नॉन पेनिट्रेटिव फॉर्म ऑफ सेक्स की तो देखो ना, कहीं अवेयरनेस ही नहीं है कि सेक्स इज़ नॉट ओनली अबाउट दैट ऑर्गन गोइंग इनसाइड। उस फीमेल को प्लेजर चाहिए, ऑर्गेज़म चाहिए, उसको चाहिए कि महसूस हो कि वो एंजॉय कर रही है। एंड इज़ दैट नॉलेज, इज़ दैट एजुकेशन देयर फॉर दैट हस्बैंड। पता चला हस्बैंड इज़ एक्चुअली लविंग हर, बट ही इज़ एब्सोल्युटली नॉट अवेयर ऑफ फीमेल प्लेजर, फीमेल ऑर्गेज़म। अगर उसको पता ही नहीं है तो वो क्या ही करने वाला है। आगे भी देखो, आई गॉट टू नो मेनी रॉन्ग थिंग्स एंड आई अप्रिशिएट दिस लेडी। उसने उस रॉन्ग थिंग्स की डिटेलिंग में नहीं उसने मेल, शी इज़ नॉट इन टू ब्लेम फ्रेम, द बेस्ट पार्ट इज़ दिस वुमन इज़ इन टू आउटकम फ्रेम। और ये मुझे इसमें बहुत क्यों अच्छा लगा, क्योंकि उसको कुछ चाहिए था, वो जो चाहिए था वो मांग रही थी, एंड शी इज़ ऑन एंड ऑफ रेडी टू इग्नोर जो नहीं मिल रहा है उस शादी में। अब जो भी गलतियाँ हो गई होंगी, शी थॉट ऑफ सेपरेशन बट शी वेंट बैक, यस थिंकिंग ऑफ माई चाइल्ड। अब हिंदुस्तान में कितनी शादियां हैं जो सिर्फ बच्चा हुआ है इसके लिए टिकी है, तो उस पर तो हम ज़्यादा बात करने में पॉइंटलेस है। वी फील दैट बीइंग टॉक्सिक हस्बैंड एंड वाइफ, वी अज्यूम वी विल बी वेरी फ्रूटफुल पेरेंट्स। तो इस पे तो हम कोई किसी दिन और वीडियो बनाएंगे। एंड नाउ देयर इज़ नो इमोशनल कनेक्शन, फिजिकल कनेक्शन, ही हैज़ स्टॉप द रॉन्ग थिंग्स। उस आदमी को ये एहसास हो गया कि अपन जो भी कर रहे थे, गलत काम कर रहे थे, वो हाउस होल्ड काम कर रहा है, मतलब वो जो कर सकता है वो कर रहा है। बट व्हेन इट कम्स टू फिजिकल एंड इमोशनल कनेक्शन, पहले से बुनियाद क्या रही है ना, किस करो, 5 से 8 मिनट में पेनिट्रेट करो, इंटरकोर्स करो, फोर प्ले के नाम पे कुछ ऊपर नीचे कुछ कर लो, और एक्ट ऑफ सेक्स हो रहा है। यहाँ पे अगर पूरे मेल में देखो तो सिर्फ एक्ट ऑफ सेक्स हो रहा है। 4 बार तो अनसेटिस्फाइड वर्ड इस मेल में लिखा गया है। आई डोंट नो हाउ टू सॉर्ट दिस, आई हैव माई ओन डिज़ायर्स। येस एब्सोल्युटली लेडी, एवरी लेडी हैज़ हर ओन डिज़ायर, एवरी लेडी वॉन्ट्स टू बी फेल्ट लव्ड, सीन, हर्ड इमोशनली एंड फिजिकली। औरतें के ऑर्गेज़म कि इग्नोरेंस की कीमत एक रिश्ता किस हद तक उठा सकता है, इज दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल। I tried to say him, I tried to teach him, but he seems not interested. This तो is crime boss, absolutely crime. अगर एक औरत आपको समझाना चाह रही है, सिखाना चाह रही है कि okay, I want fingering in this style, I want foreplay in this style, और I want to finish first, help me coming first, ये कोई गलत बात नहीं है। और अब तो सेक्स टॉयज है, वाइब्रेटर्स है, लुब्रिकेंट्स है, मैस्टरबेशन। एक औरत, मैं इस मेल में मैस्टरबेशन की बात इसके लिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैस्टरबेशन is absolutely a medically normal thing, but here the lady wants love, right? She has a desires which she has a legal partner। एक शादी में है ना, तो मैस्टरबेशन करके मैं खुद का सेटिस्फैक्शन कर ही लूँगी, बट इज़ दैट द आंसर? देन दैट इज़ नॉट द आंसर। when you are in a legal marriage, when you are have with a legal partner, when you know, क्योंकि flesh to flesh सेक्स इज डिफरेंट सेक्स, दैट इज़ वॉट दिस लेडी इज़ डिमांडिंग। और मांगने के बाद भी सामने वाला इंटरेस्ट ना दिखा, बड़े कैजुअल वे से करे, ही हैज़ नो पैशन। एंड ये सब चीज़ें दिखती है, कुछ चीज़ें बोली जाती है, कुछ देख के समझती है, कुछ महसूस होती है। एंड
यहाँ पे सिर्फ सर्वाइवल चल रहा है। एडवाइस क्या ही देंगे, एडवाइस देने के लिए इस पर्टिकुलर केस में पहले तो दोनों लोग मुझे मेरे सामने चाहिए। what I read through my experiences, the man has no awareness about the anatomy, physiology and psychology of female orgasm. Second, किसी को समझाने के लिए पहले उसको समझना ज़रूरी है। तो हमको इस शख्स को, इस हस्बैंड को समझ के लेना पड़ेगा कि व्हाट इज़ स्टॉपिंग हिम फ्रॉम गेटिंग एजुकेटेड। क्योंकि हम डायरेक्ट ब्लेम फ्रेम में जाएंगे। एक कपल जब मेरे सामने बैठता है, आई नेवर बिलीव कि ताली दो हाथ से बजती है, एक हाथ से बजती है। इट इज़ एज सिंपल एज दैट कि उस कपल का वो कॉमन गोल है कि नहीं है। Does the husband want to do sex with her? What is that it is stopping him from doing sex with her? Is his erection issues? Does he has that performance pressure? Or does he feels कि उसकी मर्दानगी को ललकारा जा रहा है? As he has, or he has no emotional connect with this lady? ये मैं 1000 सवाल पूछूंगी ना। और इस शादी को अगर आप मौका दे रहे हो तो बिलीव मी, यू हैव मेंशन आई हैव सफर्ड अ लॉट इन दिस रिलेशनशिप, इट फील्स लाइक आई एम स्टेइंग विद सम नॉन लिविंग थिंग्स। तो ये आपका चॉइस है, ये आपने चुना हुआ ऑप्शन है, आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करने पड़ेंगे। एंड माइंड इट, अगर आप प्रोफेशनल हेल्प लेके कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजंस नहीं लेते हो और सिर्फ एक बच्चे के लिए एक सेक्सलेस मैरिज में रह रहे हो, तो ये आप एक क्राइम कर रहे हो, क्योंकि यू आर नॉट प्रायोरिटाइजिंग योर ओन प्लेजर। एंड बिकॉज द मैरिज हैज़, शादी को एक बंधन होता है, एक बाउंड्री होती है, उसके नॉर्म्स होते हैं, उसके रूल्स होते हैं। प्यार बेफिक्रा होता है, शादियाँ बेफिक्री से नहीं की जा सकती। शादी में फ़िक्र होती है, इज़्ज़त होती है, रिस्पेक्ट होता है, और सेक्स और प्यार और मोहब्बत भी होता है। यहाँ पे ये सब मिसिंग है, राइट। और फिर सिर्फ एक बच्चे के लिए हम एक शादी में रह रहे हैं, तो हम उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करेंगे, बेयर करेंगे। एंड इफ़ यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर दैट कॉन्सिक्वेंसेस, इसलिए तो शायद सेपरेशन ना लेके आप इस शादी में हो। To in one line answer, you immediately need professional help. हम सोसाइटी के बनाए नॉर्म्स में फिट बैठते हैं। शादी का एक जनरलाइज्ड फार्मूला है, उसमें हर हाल में हर कपल को फिट बैठना पड़ता है। ये वो एग्जाम्पल है। अगर मेरी शादी उस फार्मूला में फिट नहीं बैठ रही है, तो मैं कुछ भी करके उस फार्मूला में फिट बैठने की मशक्क़त करती रहती हूँ। और उसके अंदर अगर सबसे पहली चीज़ कोई सैक्रिफाइस होती है, तो वह है जिस्म, वह है रूह, वह है दैट फिज़िकल कनेक्शन, वह है दैट इमोशनल कनेक्शन। फिर वो शादी कब एक डेड बॉडी बन जाती है, जिसको सिर्फ हमने दफन नहीं किया है, जलाया नहीं, ताकि दुनिया को दिखे कि शादी चल रही है। दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। So yeah, one of the very touchy mail I felt. I didn't think I could do justice in this answer because ये जवाब दे के मसला हल होने वाला मेल नहीं है, इसके लिए सेशन की ज़रूरत है। बट स्टिल आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट। अगर आप भी ऐसे सेक्सलेस मैरिजेस में हो, आप फीमेल हो और आपके ऑर्गेजम्स और क्लाइमैक्स नहीं जी पा रहे हो, नहीं समझा पा रहे हो पार्टनर को, तो या प्लीज़ डू सीक प्रोफेशनल हेल्प। और आप इफ़ यू आर मेल जेंडर से कोई ये वीडियो देख रहा है, तो यकीन मानो मेल ऑर्गेजम्स एंड फीमेल ऑर्गेजम्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पूरे इसमें मुझे बड़ा लगता है कि लैक ऑफ एजुकेशन यहाँ पे बहुत बड़ी कीमत उसका एक कपल चुका रहा है। आदमियों ने जानना चाहिए आपका पेनिस बदन के बाहर है, क्लिटोरिस बदन के अंदर है, औरत के प्लेजर की एनाटॉमी क्या है, फिजियोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी क्या है, समझ के तो लेना चाहिए ना। आपके लिए अंदर बाहर करना सेक्स है, हमारे औरतों के लिए अंदर बाहर इस तो एंड पार्ट ऑफ द, इसलिए तो उन्होंने लिखा है ना 5-6 मिनट में डन होता है। इंटरकोर्स इज नॉट इंटीमेसी। Intercourse is all about positions and timings and stamina and performance. But intimacy is about how you make her feel, how you touch her, how you make her feel heard, how you see her. आप जिस नज़र से किसी लड़की को देखोगे, उस नज़र से उस लड़की को ऑर्गेज़म हो सकता है। एंड येस, जेनिटल ऑर्गेज़म्स, इमोशनल ऑर्गेज़म्स, मुझे लगता है इट्स हाई टाइम, राइट, इट्स हाई टाइम कि वी गेट एजुकेटेड बिफोर वी गेट इनटू अ कमिटेड रिलेशनशिप। वरना हम एक दूसरे को कब इल्ज़ाम लगाने रह जाएंगे। सोचो ना, हमको प्यार चाहिए ना, वो औरत आपसे प्यार मांग रही है। 8 बिलियन पॉपुलेशन में अगर एक औरत अपने शादीशुदा आदमी से प्यार मांग रही है और कह रही है कि मुझसे सेक्स करो, मुझसे और ज़्यादा सेक्स करो, मुझे प्लेजर दो, या आपकी खुशनसीबी आपने महसूस करनी चाहिए। यू शुड फील ब्लेस्ड, यू शुड फील प्रिविलेज्ड
that a female is demanding it from you, a female is requesting you, a female, don't make her beg for sex. So yeah, that was from my side. Once again, I am Dr. Sabia, India's leading sex and relationship coach, making love simple. This channel is all about your questions, my answers, my insights. Conceive it gracefully. अगर नहीं अच्छा लगा, just ignore it. Comment section में जाके इस सवाल और इस जवाब पे आपको क्या महसूस हुआ वो शेयर करो. आपके भी ऐसे कोई सवाल है, एनी पेन स्टोरीज, एनी प्लेजर स्टोरीज, डू ड्रॉप इन द मेल. लेट्स टॉक इट आउट लाउड. आपका नाम, नंबर, ईमेल आईडी, आपकी कोई भी आइडेंटिटी अगर आपने अभी भी देखा तो हमारे तरफ से रिवील नहीं होती. इट इज़ जस्ट क्रिएटिंग द सेफ स्पेस जहाँ हम आए और खुल के बात करें और अपने प्यार को आसान करें. प्यार जैसी ह्यूमन की बेसिक नीड कब इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई हमको पता ही नहीं चला है. एटलीस्ट इट्स हाई टाइम वी कम टुगेदर, वी हील टुगेदर, वी फॉरगिव, वी फॉरगेट एंड वी गिव न्यू चांसेस to our existing relationship and we make love simple. Don't forget to subscribe the channel and drop your mails and your comments in the comment section. Thank you.